نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ بے شک ایک بار اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علی محمد سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم اور آپ مدرسہ غوثیہ، آگے جو ہے لفظ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، بتا بہرحال مدرسہ غوثیہ کے جلسے میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ بے شک اس ادارے سے جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ آج دن میں 11 بچیوں کی دستار ہوئی ہے۔ بے شک دستار فضیلت انہیں عطا کی گئی ہے، ردائے فضیلت کہہ لیجیے۔ اور اس ٹائم حفظ کے بچوں کی دستار ہے۔ کتنے بچے ہیں محمد رضا؟ 4 بچوں کی حفظ کی دستار ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مولانا احمد رضا اور ذمہ داران ادارہ اور اس بستی کے لوگوں کو بے شک مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ تمامی حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے محبتیں پیش کی، تو اس ادارے نے 11 بچیوں کو عالمہ بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا بے شک اور 4 حافظ قرآن آپ کو عطا کیا۔ ابھی میں کھیتا سرائے سے جب آگے بڑھا تو مولانا ندیم صاحب ساتھ میں تھے۔ میں نے کہا بھیا کس علاقے میں لے کے جا رہے ہو؟ کوئی گاؤں بھی نہیں دکھائی دے رہا، نہ کوئی آبادی ہے، کیونکہ رات ہو گئی تھی، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا راستہ تو کہیں ادھر ادھر نہیں ہو گئے؟ بولے نہیں حضرت بالکل صحیح راستے پہ ہیں۔ میں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم تو اہدین صراط المستقیم والے ہیں ہی، سیدھے راستے پہ تو ہے ہی، مگر معاملہ یہ پٹریا کا ہے جی۔ تو بولے نہیں بالکل صحیح۔ جب اس آبادی میں آیا اور آنے کے بعد آپ تمامی حضرات کو دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا سبحان اور دل سے دعا نکلی کہ یا اللہ تو انہیں بھی سلامت رکھ اور آپ کو بھی سلامت رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اس آبادی میں، چھوٹی سی آبادی میں، ایک عظیم ادارہ، ایک اچھا ادارہ، ایک شاندار ادارہ جس کا نظام تعلیم اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے شاندار ادارہ مولانا احمد رضا چلا رہے ہیں۔ بے شک یہ تنہا نہیں چلا رہے ہیں، ذمہ دار اراکین ادارہ ان کی بھی محنت شامل حال ہے، بے شک اور سب سے زیادہ آپ کی محبت شامل حال ہے۔ بے شک بے شک جب آپ کی محبت ہوگی، آپ کا تعاون ہوگا، آپ کا ساتھ ہوگا، تو یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو کام کر رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ لوگوں کو ادارے سے بڑی محبت ہے۔ بے شک آپ کو ادارے سے محبت ہے، اس لیے آپ قدم بقدم ساتھ دے رہے ہیں اور ادارہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ رب قدیر اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور دوسری بات میں اور بالخصوص خصوصیت کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا اس لیے بھی چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بچیوں کا ادارہ ہے، بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہے اور بچیوں کو عالمہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کام ہے، ورنہ ہمارا مزاج، ہماری طبیعت، ہمارا معاشرہ، ہمارا اس وقت جو حال ہے
वो मुझसे ज्यादा आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन यहाँ के जिम्मेदारों ने ये एहसास किया कि नहीं, बच्चियों का भी इदारा होना चाहिए। उस एहसास के तहत मदरसा कायम किया और उस मदरसे का फैज आपकी निगाहों के सामने है। हकीकत में सच्चाई तो यही है कि इंसान जब कहीं कॉलेज में या कहीं भी स्कूल में मदरसे में अपने बच्चे का दाखिला कराना चाहता है तो कोशिश यही करता है। जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, हंगामे वाली तकरीर बाद में सुन लीजिएगा, फिर कभी आएंगे तो हंगामा करके चले जाएंगे। हंगामा करना मुझे भी आता है, लेकिन मैं उस मिजाज का हूं नहीं। कुछ जो हकीकत है वो मैं पेश करके जाना चाहता हूं, शायद कि आपके दिल में उतर जाए और कौम का भला हो जाए। जी, नवाजिश। नारे लगवाना कोई भारी बात नहीं है, 2 मिनट में नारे लगवा सकता हूँ मौलाना हामिद, लेकिन क्योंकि हमारी कौम इस वक्त सिर्फ नारे ही में बह गई है, जमीन भी हकीकत क्या है उससे बहुत दूर जा रही है। तो इसलिए मैं, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए कुछ देर संजीदगी की गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, समझे। और न मैं ये कहूँगा कि आगे से नारा बोलिए, पीछे से सुभान अल्लाह कहिए। बात अच्छी लगेगी तो दिल खुद ब खुद पुकार देगा, यही मेरे लिए काफी है। बेशक। मैं ये कह रहा था कि हमारा मिजाज ये है कि हम जब अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये कोशिश करते हैं कि तालीम अच्छी कहाँ है, कहाँ का तमद्दुन अच्छा है, तहजीब कहाँ अच्छी है, परवरिश कहाँ अच्छी होती है। इसका ख्याल हम और आप सभी करते हैं जब बच्चे का दाखिला कराने के लिए जाते हैं। उसके लिए अच्छे से अच्छे डोनेशन भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, सोर्स भी लगाते हैं, कोशिश भी करते हैं कि हमारा बच्चा जब अच्छी जगह होगा तो जब वहां उसकी परवरिश होगी तो ये बच्चा अच्छा होगा और कामयाब होगा। ये हर एक की फिक्र होती है, सोच होती है कि दरसगाह बुलंद होगी तो उस जितनी दरसगाह बुलंद होगी उसमें पढ़ने वाला इंसान उतना ही बुलंद हुआ करता है। बेशक। जितनी दरसगाह आली होगी उसमें रहने वाला इंसान आली हुआ करता है। ये हमारी और आपकी सबकी फिक्र होती है और इसमें कोशिश भी इंसान करता है, लेकिन हम इन बिल्डिंगों पे तो तवज्जो दे देते हैं, इन दरसगाहों पे तो तवज्जो देते हैं कि कहाँ तालीम अच्छी है, कहाँ तहजीब अच्छी है, लेकिन इस पे कभी गौर नहीं करते हैं कि इंसान की सबसे पहली दरसगाह कौन सी है, वो कितनी बुलंद है और वो कितनी अच्छी है। जब वो दरसगाह बुलंद होगी तो उसमें पलने वाला इंसान भी बुलंद होगा और अच्छा। बेशक, बेशक, हक है। और इंसान की सबसे पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद हुआ करती है। बेशक। माँ की गोद इंसान की सबसे पहली दरसगाह है और ये दरसगाह जितनी बुलंद होती है उसमें पलने वाला इंसान उतना ही बुलंद हुआ करता है। बेशक। अगर फातिमा ज़हरा जैसी दरसगाह है तो उसमें पलने वाला हसन हुसैन हुआ करता है। अगर उम्मुल खैर जैसी दरसगाह है तो उसमें पलने वाला गौसे आजम हुआ करता है। अगर दरसगाह बुलंद हुआ करती है तो उसमें पलने वाला कोई कुतुब आदम हुआ करता है, कोई कुतुबुल अख्तार हुआ करता है, कोई महबूब इलाही हुआ करता है, कोई बाबा फरीद गंज शकर हुआ करता है। जब ये दरसगाह बुलंद होती है तो उसमें पलने वाला इंसान भी बुलंद हुआ करता है, बुलंद और अजीम तर हुआ करता है। इस फिक्र को और इस एहसास को इन यहाँ के लोगों ने महसूस किया और महसूस करके बच्चियों का इदारा कायम किया कि ये दरसगाह बुलंद होगी तो इसमें पलने वाला भी बुलंद होगा। किया है, इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम मौलाना के और अराकीन इदारा की परवरदिगार आलम उम्र में बरकतें अता फरमाए और इस पूरी आबादी की ताउन को कबूल फरमा ले। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पे हमला किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है तो उसका नाम मदरसा है। बेशक। सबसे ज्यादा मदरसे को टारगेट किया जाता है। अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे तो मालूम होगा कि मदरसे में सिर्फ 3% लोग पढ़ते हैं, बाकी 97% जो है स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं।
लेकिन पूरी दुनिया को अगर फिक्र है तो सिर्फ 3% की फिक्र है, 97 की फिक्र किसी को नहीं है। ना गवर्नमेंट को फिक्र है, ना हमारे माशरे को फिक्र है, ना हमारे समाज को फिक्र है, ना हमारे बड़े लोगों को फिक्र है। लोग आके मशवरा हम ही को देते हैं। अली जामिअतुल अशरफिया का मैं एक छोटा सा खादिम हूँ, वहां भी लोग आते हैं और कहते हैं हजरत ITI कायम कर दीजिए, मेडिकल कॉलेज डाल दीजिए, कंप्यूटर डाल दीजिए, फला डाल दीजिए, ढेका डाल दीजिए। सब लोग मशवरा हम ही को देते हैं। और गवर्नमेंट की भी पॉलिसी इस वक्त यही है कि मदरसों को स्कूल बना दिया जाए। मैं गौर करने लगा कि मामला और माजरा क्या है कि सबकी निगाह जो है मदरसे ही पे क्यों, ये मदरसे ही को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। लोग आके हमें ये तो मशवरा दे रहे हैं कि यहाँ ITI भी डाल दीजिए, मेडिकल कॉलेज भी डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, लेकिन कभी किसी ने आके ये मशवरा नहीं दिया हजरत यहाँ तो 3% पढ़ते हैं, वो 97% जो पढ़ रहे हैं उनके दीन को कैसे बचाया जाए, उनके अमल को कैसे बचाया जाए, उनकी फिक्र को कैसे बचाया जाए, उन्हें नमाज जनाजा कैसे सिखाई जाए, उन्हें नमाज कैसे बताई जाए, दीन की बातें उन्हें कैसे बताई जाए, इसका मशवरा कोई नहीं देने आता है। हमें फिक्र उन 97% की करनी है। ये 3% वाले तो अल्लाह के नाम पे पल रहे हैं और पलते चले इंशाअल्लाह। बेशक तो बेशक रहेंगे, इन्हें कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है उनकी 97% के ईमान बचाने की। और एक हकीकत और बताता चलूं आपको, हिंदुस्तान पे अंग्रेजों ने कब्जा किया, बंगाल पे कब्जा किया सबसे पहले, इंडिया ईस्ट कंपनी आई, वहां से शुरुआत हुई, बंगाल की धरती पे पूरे पे कब्जा हुआ। अब अंग्रेज आगे बढ़ना शुरू हुए, जब आगे बढ़ने शुरू हुए दिल्ली से लाहौर की तरफ जाने लगे तो उनकी एक मीटिंग हुई थी, एक फिक्र थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें यहाँ से लाहौर तक कि बिल्कुल कब्जा करना है पूरे पाकिस्तान पे, पूरे भारत पे, तो हमें जो है सबसे पहले उलमाए किराम पे कब्जा करना पड़ेगा। अगर इन पर हमने कब्जा कर लिया तो हम पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। इसी को मैं पलट के ये कहता हूं कि उनकी फिक्र ये थी कि अगर 3% पे कब्जा कर लिया तो 97 पे कब्जा हो ही जाएगा। और यही आज की भी फिक्र है कि इन 3% को खत्म कर दिया जाए तो 97% खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ये फिक्र है, ये सोचने की बात है। तो उन्होंने ये फैसला किया था कि पहले इन पे कब्जा किया जाए। तारीख उठा के देखिए, दिल्ली से लाहौर तक कोई दरख्त खाली नहीं था जिस पे सर न लटक रहे थे, और वो सर किसी आम आदमी के, पब्लिक के नहीं थे, वो उलमाए किराम जमात अहले सुन्नत की जमात के उलमाए किराम के सर थे। 27,000 उलमाए किराम जो लिखे जा चुके, नाम जिनके आ चुके, वो 27,000 करीब हैं। ये 27,000 उलमाए किराम ने शहादत दी थी, जिनकी शहादत की बुनियाद पर आज आजादी के माहौल में हम आजादी के साथ सांस ले रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि मदरसे की अहमियत क्या है। आज मदरसे को हम समझते क्या है, लोग कहते हैं कि मदरसे ने दिया क्या है, मदरसा करता क्या है, मदरसे ने सियासी का इंतजाम किया है, मदरसे ने क्या है काम किया है, कौन सी जगह कौम की रहनुमाई की है। मैं बताना चाहता हूं कि मदरसे ने क्या क्या रहनुमाइयां की है। आज हिंदुस्तान जो आजाद है ये हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम आजादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। बेशक बेशक। और आगे बढ़िए, मदरसे ने दिया क्या है, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उलमा ने अपने गर्दनों को लटकाया है। इसी दरसगाह में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसके मुसन्निफ हजरत मुफ्ती इनायत नाम है। हम तारीख भूल चुके हैं। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो भाई, मेरे आवाज आपकी बहुत कमजोर हो रही है। आवाज तेज दीजिए, ग्राउंड में आवाज नहीं आवाज ग्राउंड में नहीं है, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए आप, एकदम खोलिए फुल बेस। अब मुझे तो नहीं आता है क्या कम कीजिए क्या बढ़े, तो शोरा जानते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे आवाज अच्छी कर दीजिए। हेलो सुनिए, हेलो। ये मदरसे हैं क्या चीज मेरे अजीज। आज सबसे ज्यादा हमला मदरसों पे किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह यह है कि दुश्मन हमारा मदरसों की तारीख का मुताला करता जा रहा है। एक एक चैप्टर पढ़ रहा है, एक एक सतर पढ़ रहा है, एक एक लाइन पढ़ रहा है, एक एक लफ्ज पढ़ रहा है,
और हम और आप तो इसमें उलझे हुए हैं कि नाजिम कौन है, तो सदर कौन है, तो मोहतमिम कौन है, प्रिंसिपल कौन है, मुदर्रिस कौन है, हम तो इसमें झगड़ रहे हैं, इसमें लड़े पड़ रहे हैं। लेकिन दुश्मन की निगाह मदरसों की तारीख पे है, वो देख रहा है, वो मदरसों की तारीख पढ़ रहा है कि ये मदरसे क्या चीज हैं, क्या नेमत है अल्लाह की, क्या अजीम चीज है। वो दुश्मन उसकी निगाह उस पर है, हमारी निगाह तो यहाँ पे सर्विसों पे है, अपनी तनख्वाहों पे है, अपनी जरूरियात पर है, और अपने अपने मामलात में अपने अपनी नफ्स पर, अपनी अपनी नाक पर अपने अपने फायदे देखे जा रहे हैं कि मेरा फायदा है कि नहीं फायदा है। अगर मेरा फायदा है तो मदरसे का ताउन करूंगा, मेरा फायदा नहीं है तो मदरसे का ताउन नहीं करूंगा। ये मिजाज हमारी कौम का पैदा हो चुका है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, हज़रत जायजा ले रहा हूँ। चंद जगह को छोड़कर, भैया इसे माइक को सही कर दो वरना कहो तो हम तकरीरें बंद कर दें, क्योंकि हम धीरे धीरे बोलते हैं। सही इधर आवाज जा रही है ना, आप लोग को पहुंच रही है ना आवाज? सही। तो हम लोग तो इसी में उलझे हुए हैं, आपस के झगड़े हैं। डीएमओ ऑफिस चले जाइए तो मैं समझता हूँ हजरत टाइम लग जाएगा कि मदरसे की फाइल इतनी मोटी नहीं होगी जितना मदरसे के खिलाफ शिकायतों की फाइल मोटी होगी। वो लेके आइए। ये शिकायतें कौन कर रहा है? कोई गैर नहीं कर रहा है, हम और आप कर रहे हैं, हमारे अपने ही कर रहे हैं, अपने गर्ज के लिए, अपने फायदे के लिए। ये सारे शिकायत लेटर जितने भी हैं, और आज मदरसों पे जो भी आफतें आ रही हैं, ये देन हमारी है, वो किसी और की नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन की निगाह बहुत दूर है। दुश्मन की निगाह इस पर है कि जामा मस्जिद की दहलीज लाओ भैया, दो यार कुछ करें। माइक है, माइक की आवाज ही नहीं सही, बहुत सी आवाज। हालांकि मशीन तो बहुत बड़ी है माशाल्लाह। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस ठीक। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम तो अपने अपनी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन हमारा दुश्मन जो है मदरसों की तारीख का मुताला कर रहा है। उसकी निगाह यहाँ नहीं है, उसकी निगाह 150 साल पुरानी है कि जामा मस्जिद की दहलीज पर खड़े होकर जिहाद का नारा लगने वाली जात कोई आम आदमी नहीं थे। वो अल्लामा फजल हक टूटी हुई चटाई पर बैठकर काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं लगाने वाली शख्सियत का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। वो जात है जिसको मदरसे ने अता किया है, उनकी निगाह वहां है। दुश्मन चाहता है, जानता है कि हम अगर मदरसों को मिटा देंगे तो ये मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मुसलमान के ईमान की हिफाजत ये मदरसे कर रहे हैं, मुसलमान के अमल की हिफाजत ये मदरसे कर रहे हैं, मुसलमान के किरदार की हिफाजत ये मदरसे कर रहे हैं, मुसलमान के अखलाक की हिफाजत ये मदरसे कर रहे हैं, मुसलमानों की हिफाजत ये मदरसे कर रहे हैं। जिस दिन मदरसे खत्म हो जाएंगे उस रोज मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी भी यहाँ से शऊर जिंदगी भी अता किया जा रहा है और शऊर बंदगी भी मदरसा ही अता कर रहा है। मदरसा ही आपको शऊर दे रहा है, मस्जिद में जाने का शऊर मदरसा दे रहा है, मस्जिद में बैठने का शऊर मदरसा दे रहा है, नमाजें कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे देनी है, सदका कैसे देना है, आपको रोजा कैसे रखना है,
اس کے سارے مسائل کوئی کالج اور اسکول نہیں بتا رہا ہے. اگر بتا رہا ہے تو مدرسہ ہی بتا رہا ہے. والدین کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے, بھائی کا بھائی پر بھائی کا حق کیا ہے, بہن کا بھائی پر حق کیا ہے, بھائی کا بہن پر حق کیا ہے, باپ کا بیٹے پر حق کیا ہے, بیٹے کا باپ پر حق کیا ہے, دوست کا دوست پر حق کیا ہے, پڑوسی پر پڑوسی کا حق کیا ہے, تمہیں محفل میں کیسے رہنا ہے, تنہائی میں کیسے رہنا ہے, معاشرے میں کیسے رہنا ہے, بازار میں کیسے رہنا ہے, اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے, اجتماعی زندگی کیسے گزارنی ہے, ماحول میں کیسے رہنا ہے, تنہا کیسے رہنا ہے. اگر یہ سب کچھ بتا رہا ہے تو یہ مدرسہ ہی بتا رہا ہے, ورنہ کوئی اور چیز نہیں بتا رہی ہے. آپ کو اگر شعور دے رہا ہے تو یہ مدرسہ ہی دے رہا ہے. میرے عزیز دوستو, یہ مدرسہ جس کی دیواریں بھی صحیح نہیں, جس کی چٹائی بھی جو ہے کبھی کبھی کہیں اکثر جگہ پھٹی ہوئی, اب تو قالین کہیں کہیں مل جاتی ہے, ٹوٹیاں بھی صحیح نہیں, دروازے بھی صحیح نہیں, کچھ نہیں, اس کے بعد اسے بدنام کیا جا رہا ہے. مدرسہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے اخلاق دیا جاتا ہے, جہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں, جہاں پہ نفرتوں کی دیوار کو گرایا جاتا ہے, محبت کی دیواروں کو کھڑا کیا جاتا ہے, جہاں اخلاق دیا جاتا ہے, تمدن دیا جاتا ہے, شعور دیا جاتا ہے, تہذیب دی جاتی ہے. یہ سب کچھ کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسے سے ملتا ہے. اور کیوں ملتا ہے؟ مدرسہ جو ہے وہ رسول اللہ کا گھر کہلاتا ہے. مدرسہ رسول اللہ کا گھر, اور مسجد جو ہے خانہ خدا, اللہ کا گھر. اللہ کا پتہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا. اور اللہ کے گھر جانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ وہ رسول اللہ کے گھر نے سکھایا ہے. ہمیں وہاں جانا ہے, سجدہ کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, قیام کیسے کرنا ہے, تلاوت کیسے کرنی ہے, کتنی دیر تکبیر تحریمہ کیسے کرنی ہے, قیام کیسے کرنا ہے, قاعدہ کیسے کرنا ہے, سلام کیسے پھیرنا ہے, اعتکاف کیسے کرنا ہے, کتنی دیر مسجد میں بیٹھنا ہے, کب نہیں بیٹھنا ہے, کس حال میں جانا ہے, کس حال میں نہیں جانا ہے, یہ کوئی اور نہیں بتائے گا, یہ رسول اللہ کا گھر ہی بتائے گا. یہ رسول اللہ کا گھر ہی بتائے گا, یہ رسول پاک کا ہی گھر بتائے گا. والدین کی عزت کس طریقے سے کرنی ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, یہ کوئی اور نہیں بتائے گا, یہ رسول اللہ کا گھر ہی بتائے گا. یہ اللہ کے رسول کا گھر ہی بتائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ کا احترام کیا ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ سب پیغام کون دے گا؟ یہ مدرسہ ہی دے گا. اور یہی دنیا چاہ رہی کہ یہ پیغام ملنا بند ہو جائے تو مسلمان خود بخود ختم ہو جائے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان مدرسوں کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہ کی گئی, کیا کیا نہیں چل رہا ہے, کیا 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 جا رہا ہے, لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسہ ہے کیا چیز. آج ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اگر سن رہے ہیں تو یہ دین ہے مدرسے کی, یہ دین ہے مدرسے کی. آپ کے سروں پہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں, یہ دین ہے مدرسے کی. آپ کے اندر تہذیب و تمدن نظر آ رہی ہے, یہ دین ہے مدرسے کی. اور میں تو کہتا ہوں جہاں جہاں خیر نظر آ رہی ہے, حضرت خیر جہاں جہاں ہے, اگر گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو مدرسے کا صدقہ ہی ملے گا. جہاں کوئی اچھا نیک آدمی بیٹھا ہوگا, دیکھ لیجئے گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یا تو کسی عالم سے تعلق ہوگا یا کسی پیر سے تعلق ہوگا, کسی بزرگ سے تعلق ہوگا. یہ مدرسے ہی کی برکت ہے. یہاں ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, یہ مدرسے ہی کی برکت ہے. ہم اپنے ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں تو یہ مدرسے کی برکت ہے, کیونکہ اس مدرسے سے یہی تعلیم دی جاتی ہے, یہی طریقہ دیا جاتا ہے, یہی سلیقہ دیا جاتا ہے, یہی تمدن دی جاتی ہے, یہی فکر دی جاتی ہے. یہاں کچھ اور نہیں دیا جاتا, یہاں وہ دیا جاتا ہے جو رسول پاک نے عطا کیا ہے, اسی کو دنیا کو دیا جاتا ہے. یہ عطا کیا جاتا ہے. مدرسہ اس کو کہتے ہیں. مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں ہے, مدرسہ کمروں کا نام نہیں ہے,
मदरसा छत का नाम नहीं है, मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा जमीन का नाम नहीं है, मदरसा इमारत का नाम नहीं है। हम तो कहते हैं मदरसा उसको कहते हैं जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीम दी जाती है, उसी को मदरसा कहते हैं, उसी को मदरसा कहा जाता है। तो जहाँ पे क्या दिया जाता है? शऊर दिया जाता है, तमद्दुन दिया जाता है, फिक्र दी जाती है। और क्या दिया जाता है? अरे मदरसा तो वो है कि जाहिल आया आलिम बनाकर अता करता है, मदरसा वो है। और ये मदरसा कोई आज का कायम किया हुआ नहीं है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला इदारा, अगर पूछा जाएगा तो लोग कहेंगे मस्जिद नबी शरीफ, मस्जिद नबी शरीफ को कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे पहला इदारा मेरे आका ने मक्का में कायम किया था, और मक्का में वो दारे अरकम को बनाया था, दारे अरकम को बनाया था। क्योंकि मेरे आका वहीं बैठकर जितने भी चंद सहाबा अभी ईमान लाए थे, जो उनको तालीम अता करते थे, उसी घर में बैठ के देते थे। हजरत हमजा वहीं ईमान लाए, हजरत उमर भी वहीं ईमान लाए, उसी घर में आए थे। क्योंकि मेरे आका भी वहीं मौजूद थे, हजरत हमजा भी मौजूद थे। जब उमर फारूक पहुंचे हैं तो फिर दरवाजा खुला है, फिर बातचीत हुई है, हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। ये वो दारे अरकम है। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे पहला इदारा मेरे आका ने कायम किया है तो मक्के में, और वो दारे अरकम है। वहां पर मेरे आका ने मक्के में कायम किया, मदीने पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद मस्जिद नबी शरीफ को इदारा बनाया, मदरसा बनाया, वहीं पे एक चबूतरा बना। तो मदरसा कायम करना भी सुन्नत रसूल, मदरसा चलाना भी सुन्नत रसूल, बच्चों को पालना भी सुन्नत रसूल, मदरसे का ताउन करना भी सुन्नत रसूल, मदरसे की हिफाजत करना भी सुन्नत रसूल, मदरसे की का ताउन करना भी सुन्नत रसूल, मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना भी सुन्नत रसूल, बच्चों की हिफाजत करना भी सुन्नत रसूल, बच्चों को की देखभाल करना भी सुन्नत रसूल। मदरसे से जितना मुतल्लिक है सब सुन्नत रसूल, सब सुन्नत रसूल। चलिए चलने दीजिए, जैसा चल रहा है चलो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और जिस दिन मदरसे खत्म हो गए, सही बता रहा हूं कि हमारी शनाख्त मिट जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारा तमद्दुन खत्म हो जाएगा, हमारी शनाख्त खत्म हो जाएगी, आने वाली नस्लों को कलमा पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मदरसा ही है जो हमारी भी हिफाजत कर रहा है और आने वाली नस्लों की भी हिफाजत कर रहा है। आज आप कहेंगे कि तो बिल्कुल टॉपिक से हट के वो क्या कहते हैं वाकयाती तकरीर और ये वो तकरीर नहीं हो रही है, ये तो सिर्फ मदरसे ही को बोल रहा है। लेकिन मैं सच्चाई ये है कि एक इदारे के का जलसा है, इसलिए मैं इदारे से मुतल्लिक बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज गांव-गांव में मस्जिदें अगर आबाद हैं तो ये मदरसे की अता है, ये मदरसे की देन है। मुझे बताइए मदरसे की देन है कि नहीं है? इमाम कहाँ का? मदरसे का। आपके घर का अगर गांव देहात में ये मदरसे ही के फारिगीन होते हैं जो थोड़ी सी रकम पे आपकी मस्जिद को आबाद किए हुए हैं, अगर मदरसा खत्म हो गया तो आपकी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, आपकी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। ये 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपए ये इमामत कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दे रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर दे रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों को मिटा दे रहे हैं, अपनी तमन्नाओं को मिटाया, सब कुछ कुर्बान किया। ये सब क्या है? ये मदरसे ही की बरकत है, मदरसे ही की देन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए कि अगर ये उलमा किराम नहीं रहे तो आप अपने जनाजे को दफन भी नहीं कर सकते, नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर कोई मिल रहा है तो ये मदरसे की बरकत है कि आज आपकी नमाज़े जनाजा शरीयत के मुताबिक हो रही है, तो ये मदरसे की देन है, मदरसे की आता। भूलिए मत, अपने इमामों की कदर कीजिए। मैं आपसे कहूंगा, आवाम से कहूंगा, हम और आप रजनीगंधा गुटखा खाते हैं, 25 रुपए का खा के थूक के फूक देते हैं।
और दिन भर में 5-6 ठो खा लेते हैं। मेरे जवान बैठे हुए हंस भी रहे हैं मेरी बात पे, यार इसको रजनीगंधा कहाँ से याद आ गया, क्योंकि मैं रजनीगंधा खाता हूँ तो याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वरना और भी बहुत से गुटके आते हैं, मैं वो और कोई गुटका नहीं खाता हूँ, रजनीगंधा कभी कभी खा लेता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने जवानों को देखा है। आवाज यार बिल्कुल पता नहीं क्या, माइक कसम पूरी तक, हम क्या करें भाई, मैं तो पूरी जान लगा डाला, लेकिन वरना मैं इनको माइक किसे आवाज ही नहीं, कहीं समझ में आ रही है, 10 मिनट टाइम ले लीजिए। हाँ 1.2 पॉइंट इको चला दो, 1 पॉइंट हाई नहीं होना चाहिए, एकदम बस नॉर्मल इको जो है ना चला दो, अभी सही हो जाएगा। आपकी मशीन उसी की आदी है, मैं जानता हूँ, आपकी मशीन उसी की आदी है। आप इको चलाइए, बिल्कुल नॉर्मल चलाइएगा, एकदम बढ़ाइएगा मत। देखिए अभी आवाज अच्छी होती है कि नहीं होती है, यार कारीगर आप हो। चलिए दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अब आवाज को थोड़ा सा हल्का कीजिए, हो गई सही? क्या है, हम ही को सोचना ऑपरेटर हो जाना चाहिए, क्या कहूँ जी? हाँ बिल्कुल, वहीं मैं आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हैं, मगर मेरा क्या करूँ, माइके आपने मेरी जान ले डाली है। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हाँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मस्जिद के इमाम की कदर हम कितना करते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर इमाम साहब मोटरसाइकिल से गुजर गए तो सबके दिल पे जो है आरी चलने लगती है कि इमाम साहब अब मोटरसाइकिल से चलने लगे हैं। माफ कीजिएगा, गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर इमाम साहब अपने घर फ्रिज लेके आ गए तो बोले वाह साहब, इमाम साहब के घर में फ्रिज जा रहा है, वॉशिंग मशीन जा रही है। अरे खुश होना चाहिए, आपका इमाम है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हैं। जरा आपको गौर करना चाहिए, जिस दिन से हमने इमामों की कदर कम कर दी है, हमारी कदर कम हो गई है। जब से हमने इमामों की इज्जत को छोड़ दिया है, इज्जत ने हमें भी छोड़ दिया है, और आज हम जगह जगह जलील होते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि हमने अपने इमामों का एहतराम किया। बेशक बेशक। और एक बात याद रखिए, अगर दिल में जरा भी इमाम के मुतालिक आपके दिल में जरा भी उसके खिलाफ नफरत और कुछ है, आप नमाज पढ़ेंगे आपकी नमाज नहीं होगी। उससे मोहब्बत पैदा करो ताकि आपकी नमाजें कबूल हो जाए, आपकी नमाजें कबूल हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं इन जवानों को, नौजवानों को खास कर मैं मुतवज्जे करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हम गुटके खा के दिन भर में 10-5 थूक देते हैं, लेकिन हम अपने इमाम पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। इमाम को अगर हमने 7,000 5,000 दे दिया है तो इतनी आवाज बुलंद करके बोलते हैं कि हम इमाम साहब को 7,000 रुपये दे रहे हैं। अरे आप इमाम की हैसियत तो आपने अपनी चपरासी से भी ज्यादा गिरा दी है। अपने नौकरों को 10,000 और ड्राइवरों को 10,000 दे रहे हैं। जब आपके ड्राइवर और नौकर की इज्जत अगर बढ़ गई, उसको अहमियत दे दी है, तो परवरदिगारे आलम ने तुम्हारी अहमियत को घटा दिया है। अगर अपने इमाम की इज्जत करो, उसकी अहमियत को बढ़ा दो, इंशाअल्लाह परवरदिगार उसके सदके में तुम्हारी अहमियत को बढ़ा दो। बेशक बेशक। बहुत उम्दा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, नबीरे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मदरसा गौसिया। और हम एहतराम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने उलमा इकराम की इज्जत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम अपने इमाम का एहतराम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें ही करना है, हम करेंगे। हम करेंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी। मैं असली ये कहना चाह रहा था कि अब
قوم کے پاس ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، بس قوم کو تھوڑی سی فکر پیدا کرنی پڑے گی، اپنے اندر احساس جلانا ہوگا کہ ہمارا امام شاندار طریقے سے رہے، عزت و احترام کے ساتھ رہے، جدھر سے گزر جائے تو اپنے غیر بھی یہ کہے کہ یہ مسلمانوں کا امام جا رہا ہے۔ اس انداز سے اپنے امام کو اگر رکھو تو یہ ہیبت غیروں پہ بھی پڑے گی اور دوسروں پہ بھی پڑے گی۔ پہلے امام کو اہمیت تو دے دو، امام کو بڑھاؤ تو۔ اور ٹھیک ہے تنخواہ آپ دے رہے ہیں، جتنی بھی دے رہے ہیں، حضرت میں کیا بتاؤں، درد ہوتا ہے کبھی کبھی محسوس۔ میں بھی جھارکھنڈ میں گیا تھا، اللہ کا شکر جاتے ہی رہتا ہوں، ایک شہر میں پہنچا، ایک آبادی میں، جن کے وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ تو ان کے گھر ایک نوکر تھے، میں نے پوچھ دیا، وہ بتانے لگے یہ قریب 40 سال سے یہ نوکر میرے گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، بولے جوانی سے تھے اب بوڑھے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، میں ان کو آج تنخواہ جو ہے 12,000 دیتا ہوں اور باقی الگ سے مدد کرتا رہتا ہوں۔ گاڑی ان کی تھی، گاڑی سے میں جانے لگا، جب گاڑی سے اسٹیج کی طرف گیا تو ڈرائیور سے بھی میں نے پوچھ دیا، لاؤ اس سے بھی پوچھ دوں اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں، تو بولے کہ ڈرائیور نے بتایا کہ مجھے 14,000 روپیہ دیتے ہیں۔ بس مسجد کے امام جی صاحب بھی مجھ سے ملاقات ہو گئی، ملنے آئے تھے، بیچارے مصباحی تھے، پڑے ہوئے تھے، میں نے ان سے بھی پوچھ دیا بابو تمہاری کیا تنخواہ ہے، تو بولے کہ 8,000 روپیہ۔ 8,000 روپیہ، قسم سے طبیعت عجیب تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ آج ایک عالم دین اور حافظ قرآن کی اہمیت کو اس قوم نے اتنا گرا دیا ہے کہ ڈرائیور کی تنخواہ اتنی زیادہ، چپراسی کی تنخواہ اتنی زیادہ، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، جس کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہماری نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، ہمیں دعائے مغفرت کر رر ہے، اگر ہمارا باپ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام جا رہا ہے، اس کی تنخواہ 8,000، تو قوم کا کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے یہی ہوگا۔ جس دن ہم نے اہمیت اور احترام کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کی برکتیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اماموں کو احترام کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے بہت زیادہ بڑھا دیجئے کہ آپ پہ بہت زیادہ بوجھ بڑھ جائے، لیکن اتنا نوجوانوں سے ضرور کہوں گا کہ اپنے ایک دن کا خرچہ، صرف فالتو خرچہ، اوریجنل خرچہ نہیں، ضرورت والا خرچہ نہیں، صرف فالتو خرچہ روک دیں اور امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امام جو ہے خود غفیل ہو جائے گا اور خوشحال ہو جائے گا، اور زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ جمعے کے روز، اب سنیے، جمعہ کے دن نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد رخصت ہوئیے، اپنے امام سے محبت کے ساتھ مصافحہ کیجئے، اور اس مسافے میں کم از کم 50 سے 100 روپیہ رکھیے گا، انشاءاللہ امام خوشحال ہو جائے گا، اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اس بچوں کے دل سے دعائیں نکلیں گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں بھی دور ہو جائیں گی، یہ آفت و بلا جتنی بھی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو، مرتبہ کر کے تو دیکھو۔ ہمارا ماحول تو معاشرہ تو یہ ہو گیا، حضرت معاف کیجئے گا، اگر پیر صاحب آ گئے تو پس پوچھئے مت، دکان بھی بند، دوری بھی بند، یہ بھی بند، کھلیان بند، کھیت بند، مشین بند، سب کچھ بند، کہ پیر صاحب آئے ہیں۔ اچھی بات ہے، پیر کا احترام کیجئے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، عزت کیجئے، پیر سے محبت کیجئے، لیکن صرف یہی مت کیجئے۔ پیر صاحب سے زیادہ کام جو ہے آپ کے گاؤں کا امام آتا ہے، جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو پیر صاحب 100 کلومیٹر 500 کلومیٹر دور ہے، آپ وہ نہیں جاؤ گے، رات کو 12 بجے کہیں جاؤ گے تو امام کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ گے، اس کی زنجیر کو بچاؤ گے، کہو گے امام صاحب پڑھ دیجئے، دعا کر دیجئے۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو اذان دینے کے لیے آپ کہیں اور نہیں جاؤ گے، اسی امام کے پاس جاؤ گے، نکاح پڑھوانا ہے تو کہیں نہیں جاؤ گے، اسی امام کے پاس جاؤ گے، اگر گھر میں میت ہو گئی ہے تو نماز جنازہ کے لیے کہیں اور نہیں جاؤ گے، اسی غریب امام کو پکڑا جائے گا کہ چلیے نماز جنازہ پڑھائیے، جو تمہارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساتھ دے رہا ہے، تو اسے کبھی بھولا نہ کرو، بلکہ اس کی بھی مدد کرتے رہو، تو پروردگار عالم تمہارے
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा तो मामला इतना हो गया है कि आजकल हजरत क्या बताऊं, मैं कह भी दे रहा हूं वरना और कोई कह भी नहीं पाएगा। अगर पीर साहब आ जाएं तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल एकदम उसी में महव हो जाते हैं। अगर अम्मा अब्बा बीमार पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं बड़ा भाई ले जाए तो छोटा भाई ले जाए, या बहन ले जाए, चचा ले जाए, भला ले जाए, ठेका ले जाए। माफ करना, अगर अम्मा अब्बा खुश नहीं है तो पीर साहब की दुआ काम नहीं करेगी। अम्मा अब्बा खुश हैं तब पीर साहब की दुआ काम करेगी। जी जी, पहले माँ बाप को खुश करो, पहले माँ बाप को खुश करो, फिर पीर साहब को खुश करो, ताकि उनकी दुआएं आपके हक में कबूल हो जाए। बेशक। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बात लंबी होती जा रही है, 11 बज गए हैं, मेरे बाद भी कई तकरीरें होनी है जी। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं, अगर आप में से किसी को अगर तकलीफ हुई होगी तो माफ कर दीजिएगा। जो मेरा दर्द था वो मैंने बयान कर दिया है। बेशक बेशक। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना मोहम्मद रजा को और यहाँ के अराकीन को, क्या आज हिफ्ज के 4 बच्चे फारिग हुए हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इन असातिज़ा की मेहनत, लगन, जुस्तजू, अराकीन के खुलूस, आपका ताउन और खुसूसी तौर पे उनके वालिदैन की दुआ, इन्हीं सब चीज़ों का समरा है कि ये बच्चे आज फारिग हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हाफिज कुरान का जो मर्तबा है, जो इज्जत है, जो एहतराम है, उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। बस इतना मैं कह के गुजर रहा हूँ कि हाफिज कुरान के लिए बड़ी बड़ी अजमतें, बड़ी बड़ी मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हदीस पाक है जो इनका एहतराम और जो इज्जत बताई है, बेशक उसी को सामने रख के एक बुजुर्ग थे, उनकी माँ, एक बुजुर्ग की माँ कि दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊं। माँ निकलती है, बच्चे को ले जाती है, शेख के हवाले करती है, हाफिज जी के पास करती है और हाफिज जी से कहती है कि मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिएगा, मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिएगा। उस शेख मोहतरम ने कहा इंशाअल्लाह मैं आपके बच्चे को हाफिज कुरान बना दूंगा। लेकिन माँ ने कहा कि मैं बेटा छोड़ के तो जा रही हूँ, इस बेटे को छुट्टी मत दीजिएगा जब तक कि वह हाफिज कुरान ना हो जाए। जब मुकम्मल ये हाफिज कुरान हो जाए तब इसको छुट्टी दीजिएगा घर जाने की, और ना उससे पहले छुट्टी मत दीजिएगा। उस्ताद ने कहा ठीक है, इसे पहले मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, उसके बाद इनको छुट्टी दूंगा। बात हो गई, माँ छोड़ के चली आई। छोटे से थे, कम उम्र थी, माँ की याद आई। रोजाना माँ के हाथ से खाना खाते थे, माँ के हाथ से लुकमा लेते थे, माँ के आंचल में सोते थे, माँ की गोद में सोते थे, माँ की मोहब्बत में रहते थे। एक दिन गुजरा, सब्र किया, 2 दिन गुजरे, सब्र किए। जब 4-5 रोज गुजर गए, सब्र का पैमाना टूट गया, वो रोने लगे। माँ की मोहब्बत याद आने लगी, माँ का आंचल याद आने लगा, माँ का प्यार याद आने लगा, माँ की वो शफकतें याद आने लगी, माँ का चेहरा याद आने लगा, माँ का वो दुलार याद आया, वो प्यार याद आने लगा। और तड़प जाते हैं, और तड़प के उस्ताद के पास जाते हैं, कहते हैं हुजूर मैं मानता हूं कि मेरी माँ ने कहा था कि जब तक मुकम्मल हाफिज कुरान ना हो जाऊं जिसे छुट्टी मत देना, लेकिन सरकार मैं सिर्फ इतनी इजाजत चाहता हूं कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ का चेहरा देखकर मैं वापस आ जाऊं। मैं गुफ्तगू भी नहीं करूंगा, घर पे ठहरूंगा भी नहीं, सिर्फ माँ का चेहरा देखकर वापस आ जाऊंगा। अगर माँ का चेहरा मैं देख लूंगा तो मेरे दिल को कुछ करार मिल जाएगा, कुछ सुकून मिल जाएगा, कुछ इत्मीनान मिल जाएगा। हुजूर मुझको इजाजत दे दीजिए। हजरत ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी माँ ने मना किया था, तुम्हें छुट्टी नहीं दी जाएगी। आते हैं खामोशी से, रोते हैं, आंखों से आंसू जारी है। एक दिन गुजर गया, फिर 3-4 दिन जब गुजरते हैं तो फिर हजरत की बारगाह में, उस्ताद मोहतरम की बारगाह में आके रोते हैं, कहते हैं सरकार एक मौका दे दीजिए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है कहीं फट न जाए, मैं अपनी माँ का सिर्फ चेहरा देखना चाहता हूँ, चेहरा देखकर मैं वापस आ जाऊंगा। हुजूर मैं बात भी नहीं करूंगा,
सिर्फ माँ की ज़ियारत करूंगा, मैं माँ की ज़ियारत करूंगा, इसलिए इजाजत दे दीजिए। उस्ताद ने कहा कि नहीं, ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हें इजाजत इस शर्त पे दूंगा कि तुम कल मुझको सुबह जो है ये आधा पारा हिफ्ज करके मुझे सुना दोगे तो मैं तुम्हें जो है छुट्टी दे दूंगा। ये आधा पारा याद करो और कल सुबह मुझे सुना देना तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। वापस आते हैं, बैठ जाते हैं और याद करना शुरू करते हैं। आधा पारा याद कर लिया, आधा तो याद हो गया, आगे बढ़ते हैं, आधा और याद कर लेते हैं। पूरा पारा याद कर लिया, फिर आधा पारा और याद करते हैं, फिर दूसरा पारा पूरा करते हैं। इस तरीके से एक रात में 3 पारे याद कर लेते हैं। जब 3 पारे याद हो गए, सुबह फजर के वक्त उठते हैं और उस्ताद मोहतरम के पास जाते हैं, कहते हैं हुजूर आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया है, आप मेरा पारा सुनिए। हजरत ने कहा कि ठीक है, जोहर के वक्त सुनूंगा। आजमाइश हो रही है, आजमाइश में मुब्तला है, तब जाते हैं, कहते हैं अब दोपहर तक मुझे सब्र करना पड़ेगा, दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कैसे कैसे पूरी रात गुजारी है, अब दोपहर तक फिर मुझे आंसू बहाने पड़ेंगे अपनी माँ की याद में। तब जाते हैं, रोते हुए वापस आते हैं। जब जोहर का वक्त होता है तो फिर जोहर के बाद उस्ताद मोहतरम से कहते हैं हुजूर मेरा पारा सुनिए। कहते हैं कि सुनाओ। आधा पारा जो शर्त थी वो सुना देते हैं, फिर आगे हजरत सुनाना शुरू करते हैं। एक पारा सुनाया, दूसरा पारा सुनाया, जब तीसरा पारा सुनाया तो उस्ताद मोहतरम की भी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं ए बेटे, तेरी माँ के, तेरे दिल में जो माँ का प्यार है वो मैंने कहीं नहीं देखा है। अपनी माँ की मोहब्बत में तूने आधा पारा नहीं 3-3 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। जा, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जा अपनी माँ का जियारत करके चला। और मैं अपनी तरफ से ये भी इजाजत देता हूँ, सिर्फ जियारत न करना, सलाम भी करना और खैरियत भी ले लेना, ये मैं इजाजत दे रहा हूँ। हजरत चलते हैं, ये कोई और नहीं है, इनका नाम हजरत बायजीद बुस्तामी है। ये हजरत बायजीद बुस्तामी निकलते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। दरवाजे पे जब दरवाजे पे दस्तक दी है और इधर दस्तक देते हैं, माँ अंदर से कहती है कौन आया है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं ए माँ तेरा बेटा बायजीद आया है, बायजीद तेरा बेटा आया है। माँ अंदर से जवाब देती है नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसे नहीं आ सकता है, मेरे बेटे ने तो वादा किया था कि मैं जब तक पूरा हाफिज कुरान ना हो जाऊंगा, जब तक नहीं आऊंगा मेरा बेटा नहीं हो सकता है। माँ अंदर रो रही है, अपने कलेजे को पकड़े हुए है, अपनी मोहब्बतों को कुचल रही है, अपने अरमानों को दबाए हुए है, अपनी प्यार को समेटे हुए है, लेकिन कहती है ए मेरे शख्स सुन, मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो हाफिज बायजीद बनकर ही आएगा। ये कहते हैं ए अम्मी जान दरवाजा तो खोलो, आपका ही बेटा खड़ा है, बायजीद ही खड़ा है। ए अम्मी जान जरा आंखें तो खोलो, दरवाजा तो खोलो, आपका बेटा खड़ा है। लेकिन माँ कहती है नहीं नहीं, मैं तब खोलूंगी जब मेरा बेटा हाफिज बायजीद आएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने सोचा कि अब मेरी माँ दरवाजा नहीं खोलेगी। वहां से वापस आते हैं, अब दरवाजे से वापस जा रहे थे, एक गली के कोने तक पहुंचे थे कि माँ की ममता टूट जाती है, माँ का प्यार मचल जाता है, ममता मचली है और सब्र टूट गया है। जो आजमाइश में थी, जो आजमाइश में थी, जो सब्र किया हुआ था वो टूट गया पैमाना, और फौरन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोल के आवाज देती है ए मेरे बायजीद वापस आ जा, ए मेरे बायजीद वापस आ जा। हजरत बायजीद बुस्तामी जो है चेहरा माँ की तरफ नहीं करते हैं, माँ की तरफ नहीं देख रहे हैं, बल्कि अपना दामन उठाते हैं और दामन से आंसू साफ करते हैं और साफ करके कहते हैं ए अम्मी जान, अब तेरा बायजीद आएगा तो हाफिज कुरान बन के आएगा, ऐसे ही नहीं
जाएगा। अपनी माँ का चेहरा नहीं देखते हैं और रोते हुए वापस चले जाते हैं। तारीख ये बताती है कि 6 महीने के अंदर हजरत बायजीद बुस्तामी हाफिज़े कुरान हो जाते हैं और उस्ताद के पास आके कहते हैं हुजूर अब बायजीद जो है सिर्फ बायजीद नहीं है बल्कि हाफिज बायजीद हो चुका है। अब अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है, इसे इजाजत दी जाए। माँ हजरत ने इजाजत दी। हजरत बायजीद बुस्तामी घर पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं और जैसे ही दस्तक दी है माँ अंदर से पूछती है कौन आया है। बाहर से जवाब देते हैं कि हाफिज बायजीद बुस्तामी आया है। माँ की कलियां खिल जाती है, माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरवाजा खोलती है और अपने बेटे को सीने से लगाती है, कभी पेशानी चूमती है, कभी गाल चूमती है, कभी बालों पे हाथ फेरती है और सिमटा के रोती है, चिपटा के रो रही है और रोते रोते कहती क्या है, जरा गौर से सुनो मुसलमानों कि हाफिज़े कुरान का मर्तबा क्या है। माँ कहती है मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे, नमाजें मैंने बहुत पढ़ी है, रोजा मैंने बहुत रखा है, हज भी मैंने किया है, सदकात और ज़कात भी दी है, मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, लेकिन मुझे मालूम नहीं मेरी ये इबादत कबूल हुई कि नहीं। लेकिन मेरे आका ने ये फरमाया है कि कल क़यामत के दिन हाफिज के वालिदैन के सर पे नूरानी ताज रखा जाएगा। मुझे अपनी नमाजों पे तो भरोसा नहीं मगर अपने आका के कौल पे यकीन है, आका के उस बयान पे यकीन है कि मेरा रब मेरे सर पे नूरानी ताज जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब दें या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाफिज़े कुरान का ये मर्तबा। बेशक। तो आज जो बच्चे हाफिज़े कुरान हुए जी, इनके वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं। बेशक, बेशक। कल इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परवरदिगार आलम अपने महबूब का जो कौल है उसे कल क़यामत के दिन पूरा करेगा। इन हाफिजों के पहचानो, इनका अदब करो, इनका एहतराम करो। एक आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ। महमूद गजनवी का नाम सुना होगा। महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसने जंग से आया, रात महल में पहुंचा और जंगी लिबास उतारा नहीं। इतना थका हुआ था कि जंगी लिबास नहीं उतारता बल्कि सो जाता है। सो गया, जब सोया और आंख खुली तो देखा कि मेरा पैर उस जानिब है जहां ऊपर कुरान शरीफ रखा हुआ है। इतने उलमा किराम बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ लीजिए अगर ऊपर कुरान शरीफ है और पैर उधर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। फतवा है कि पैर उधर कर सकते हैं, जायज है। लेकिन महमूद गजनवी की आंख खुली तो देखा मेरा पैर उस तरफ है जिधर कुरान ऊपर रखा हुआ है। तड़प गया, बेकरार हो गया। जल्दी से उठता है जी, लिबास निकालता है, जंगी लिबास जो था वो निकाला, वजू किया, कुरान को उतारा, चूमता है, आंखों से लगाता है, सर पे रखता है और फिर उसके बाद रहल पे खोल देता है। और खोल के कुरान पाक को खोल कर उंगली फेरता है। पढ़ता क्या है जी, कुछ नहीं पढ़ रहा, कुछ पढ़ नहीं रहा जी, सिर्फ इतना महमूद गजनवी कहते जा रहे हैं या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माशा मैंने कसदन पैर उधर नहीं किया है, अल्लाह, ये गलती से चला गया है, नींद में चला गया है, मौला तू मुझे माफ कर दे, मौला तू मुझे माफ कर दे। पूरी रात ये करते रहे और वर्क पलटते थे, उंगली फेरते थे, कहते थे अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरे मौला माफ कर दे, ये मुझसे गलती से हुआ है, कसदन मैंने ऐसा नहीं किया है। होने के बाद जब मौज़िन सुबह सादिक के वक्त अजान देता है तो फिर इनको एहसास हुआ
कि रात खत्म हो गई है, और खत्म हो गई फिर कुरान उठाते हैं, चूमते हैं, ऊपर रख देते हैं। जब इनका इंतकाल होता है तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा और पूछा कि ऐ महमूद गजनवी, तेरे साथ तेरे रब ने क्या मामला किया? जी तो महमूद गजनवी कहते हैं कि रब ने मुझे माफ कर दिया और बख्श दिया है। जी जी लोगों ने उन्होंने कहा कि तू बहुत बड़ा बादशाह है, बड़ी खैरात की है, बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिहाद किया है, इसलिए रब ने तुझे माफ कर दिया होगा। महमूद गजनवी कहते हैं मेरे रब ने इसलिए माफ नहीं किया है, बल्कि उस रात की उस अदा को मेरे रब ने कबूल कर लिया है और उसके सदके में मुझे माफ कर दिया है। रात भर सिर्फ ज़ियारत करने की बुनियाद पर एक को बख्शा जा सकता है, तो जिसने 30 पारे अपने सीनों में रखा हो तो उसका क्या मर्तबा होगा, क्या एहतराम होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में यही कह के गुजरूंगा कि मदरसे से मोहब्बत करो, बेशक मोहब्बत मदरसे से लगाव रखो, बेशक मदरसों को इख्तिलाफ से बचाओ, क्योंकि ये मदरसे सलामत हैं तो हम सलामत हैं, बेशक आप सलामत हैं, आने वाली नस्लें सलामत हैं, हमारा ईमान महफूज है, हमारा अमल महफूज है, क्योंकि यहीं से हमको मोहब्बत रसूल भी मिलता है, तालीम रसूल भी हमें मिलती है। जो भी कुछ मिला है ये मदरसों ही से मिला है, इसलिए मदरसों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में कि इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह।